السلام علیکم، خبرات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ہے شورا آفاق، دا گڈ، دا بیڈ اینڈ دا اگلی. یہ اپنی نوعیت کی ایک انتہائی شاندار فلم ہے، بلکہ میرے حساب سے ایک حسین فلم ہے جس نے ویسٹرن یونرا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. اس فلم کے بے شمار پہلو ہیں، آپ ایک ایک کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بات کر سکتے ہیں. یہ انتہائی قلیل رقم خرچ کر کے بنائی گئی فلم ہے. یعنی یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ اتنی بڑی فلم جس کا بیک گراؤنڈ سکور اتنا شاندار ہے کہ جو کلاسیک بن چکا ہے، وہ اتنے تھوڑے پیسوں سے کیسے بن سکتی ہے. لیکن where there's a will there is a way. 1.25 یعنی $1.25 ملین خرچ کر کے یہ $1.25 ملین خرچے سے 1966 میں $1.25 ملین بھی بڑی رقم تھی، یہ بنی. لیکن اس نے $39 ملین کمائے باکس آفس سے، اور آج تک ایز آف ٹوڈے اس کی رائلٹی مختلف شکلوں میں مختلف لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ایک اور دلچسپ پہلو اس کا یہ ہے کہ امریکی اس کو اون تو بہت کرتے ہیں کہ جی ہماری بیسٹ فلموں میں سے ایک ہے. یہ امریکی اشتراک سے ضرور بنی ہے، لیکن اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ این امریکن مووی. اٹس بیسیکلی این اٹالین مووی. اطالوی فلم ہے یہ، کیونکہ رائٹر اور ڈائریکٹر اس کا اٹالین، کانسیپٹ سارا اٹالین تھا. یہ بنی بھی زیادہ تر اسپین میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا امریکن ڈیزرٹس جو ہے، کیونکہ جو وقت دکھایا گیا ہے 1862. بڑی دلچسپ کہانی ہے. میں بہت مختصراً اس کا احاطہ کروں گا کہانی کا بھی، لیکن چھوٹی چھوٹی اس سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ بتا دوں، پھر میں تعارف کرواؤں گا اس کے 3 میجر کیریکٹرز کے ساتھ. میں اختصار سے تذکرہ کر دوں کہ ٹائم میگزین نے اس کے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے کہ یہ بلا شبہ 100 عظیم ترین فلموں میں سے ایک ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ بلا شبہ 10 عظیم ترین فلموں میں سے ایک ہے. اپنے یونرا کی نمبر 1 ہے. تو ایک یونرا تو آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے نا. جی ہاں. تو لیٹس سے 25 عظیم ترین فلموں میں، اگر 10 نہیں، کیونکہ 25 تو یونرے نکل آئیں گے، 25 عظیم ترین فلموں میں سے ایک، یعنی اپنے یونرا کا سرخیل ٹیرنٹینو. بڑا ہی باکمال ڈائریکٹر، بڑا ہی باکمال ڈائریکٹر. وہ کہتا ہے کہ یہ فلم دراصل جو اس کا ڈائریکٹر ہے سرجیو لیون، یہ اس نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے فلم نگری کے اوپر، فلم انڈسٹری کے اوپر، فلم کی دنیا کے اوپر، اور بلا شبہ یہ دنیا کی عظیم ترین فلم ہے. اینڈ دس مووی ایکچولی از اے گریٹ ہیومن اچیومنٹ. اچھا. ہی وینٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. آج بھی اسپین میں انہوں نے وہ قبرستان جو سیڈ ہل سیمیٹری ہے، جس قبر میں وہ خزانہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور سیاح جاتے ہیں وہاں دیکھنے. سو مچ سو کہ اسپینش گورنمنٹ اس جیل کو بھی ری بلڈ کر رہی ہے، اس کو ایک طرح سے رینوویٹ کر رہی ہے جو سیٹ تھا اس کا، اور اتنی بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بن چکی ہے یہ چیز. یہ تو تھا دا گڈ، دا بیڈ، دا اگلی کے بارے میں ایک ٹریویا، ایک چھوٹی سی ایک گزارش. اب ملاقات کرتے ہیں ڈمی میوزیم سے بلائے ہوئے 3 مین کیریکٹرز کے ساتھ. سب سے پہلے ہے دا گڈ، یہ جو ہیٹ پہن کے بیٹھا ہوا. اچھا نہیں، ہاتھ ہی کھڑا کر لو یار. ہاتھ ہی کھڑا کرنے سے میں ہیرو ہے نا باجی، ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਨਿਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਭਾਣ ਦੌੜਾਣੇ ਜੇ. ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਿਤਾ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ. اچھا جی، ساتھ بیٹھے ہیں دا بیڈ، وہ جو دوسری طرف ہیٹ والے، اور درمیان میں بیٹھے ہیں دا اگلی. دا اگلی، وہ کلنٹ ایسٹ وڈ تھا، یہ لی وین کلیف ہے، اور یہ جو سینٹر میں بیٹھا ہے بلا کا ایکٹر تھا. کمال کی اداکاری اس کی. جو اگلی تھا لیکن فلم کی جان رہا ہے تھرو آؤٹ، ایلی ویلچ. یہ جو گڈ ہے اس وقت تو کتنا اگلی لگ رہا ہے.
और जो अगली है बेचारा, अगली वो शाह रुख खान लग रहा है। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਲੌਂਡੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਹ ਲੌਂਡੀ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ओए लौंडी नहीं हो गधे, ब्लॉन्डी। ਬਲੌਂਡੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਬਲੌਂਡੀ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਛੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਬਲੌਂਡੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ब्लॉन्डी कुत्ती का नाम था। कुत्ती क्या होता है यार? कुतिया होता है, कुतिया का नाम था। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਂਡੀ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ, 3 ਬੈਲਟਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ। ब्लॉन्ड कलर होता है, उसको ब्लॉन्ड कहते हैं। बाल नहीं कभी देखे जो सुनहरी से होते हैं, जो सुनहरी बाल होते हैं ना, उनको ब्लॉन्ड कहते हैं। ब्लॉन्ड लड़कियां होती हैं, तो ये भी चूंकि सुनहरी बालों वाला था, इसमें लड़कियां ही नहीं बंदों के भी बाल। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाल ब्लॉन्ड है, हाँ, तो उसके बाल भी इसी रंगत के थे, इस वजह से उसे ब्लॉन्डी कहता था वो, मजाक में, शरारत में, और बल्कि किसी हद तक बड़ी नफरत में, हकारत में। ओए। जो अगली था लेकिन फिल्म की जान रहा है थ्रू आउट। इसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, तो सोचा गया था कि डब होगा। उसने कहा नहीं, मैं खुद ही करूंगा, ये कैसे हो सकता है। तो इसकी असल लैंग्वेज क्या थी? स्पेनिश। तो ये कहानी है अमेरिकन सिविल वॉर के बैकड्रॉप पे। 1862 में ये दोनों बड़े थग होते हैं, हीरो भी जो द गुड है और द अगली भी। हीरो दरअसल बाउंटी हंटर है। ओके, उस दौर में जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, इलाका गैर से पकड़ के मुजरिमों को लाया करते थे लोग जो बाउंटी हंटर्स थे, और उन्हें इनाम की रकम मिला करती थी जो बहुत ज़्यादा होती थी। आउटलॉज को पकड़ने का ये बेस्ट तरीका था कि वो उन्हें इन्हीं के ज़रिए पकड़वाते थे। पुलिस इतनी वेल इक्विप्ड नहीं होती थी, फौज इतनी तैयार नहीं होती थी इस काम के लिए। और सर इतना बड़ा इलाका था। जी जी। तो इसका तरीका वारदात ये था कि आमतौर पे उसको पकड़ के ला के हवाले करके हमेशा ट्रायल का इंतज़ार किया करता था। वो समैरली उसको उन्होंने फांसी देनी होती थी। जब वो फांसी पे लटकाया जाता तो ये दूर से निशाना लगा देता था, रस्सा टूट जाता था। इसलिए कि फांसी तो एक तरह से होगी, फांसी का अमल जो है वो तो, लेकिन वो फिर पकड़ते थे इसको क्योंकि वो इतनी काउंट्स पे 25-30 कत्ल, बेशुमार डकैतियाँ, अगवा, रेप, उन सब में वो मतलूब होता था। लेकिन वो इतना कभी कैरेक्टर था, ये जो सेंटर में बैठा है, ये जो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਬਗੈਰਤ। नहीं, और तुम्हें क्या द गुड बनाते? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। तुम्हारी औकात है दग ये। दगड़ घी क्या होता? ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦਾ ਗੁੱਡ, ਦਾ ਬੈਡ, ਦਾ ਥੱਥੀ। ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਲਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਬੈਲਟ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਪੈਂਟ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਜੈਕਟ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਪਾਲ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ 2 ਵਾਰੀ। ਏਅਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਓਏ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਯਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ये वैसे अगर देखा जाए ना तो सबसे कभी कैरेक्टर इस फिल्म का, ओए जो सही विलन था, ये तो बेचारा मॉक होता है ना, होता बड़ा टफ है। ये जो द अगली है वो सिर्फ अपनी गलाजत की वजह से, अपनी शक्ल शबाहत की वजह से, लिबास की वजह से वो अगली मशहूर था, वरना उसके अंदर अच्छाइयाँ भी थी। दूसरा वो हीरो का दोस्त भी था, बाद में दुश्मन हो गया लेकिन फिर दोस्त हो गया। लेकिन जो बाय नेचर एक कभी कमीना, लालची और खुदगर्ज इंसान था, द बैड, जो सिंबल है इन तमाम कबाहतों का, वो द बैड था। ली वैन क्लिफ जो ये काले हैट में बैठा हुआ है। और तुम नहीं, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ 6-6 ਸਾਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। तो पहले आप पूछ लें आप कौन है, आप अंधे हैं? अच्छा जी, उस दौर में हाँ जी ये वारदातें किया करता था, उसे छुड़ा लेता होता था। हर दफा $1000-2000 कमा लिए, आधे उसे दे दिए, आधे खुद रख लिए। लेकिन वो जो खबीस है ना, जो बैड है, हाँ जी, वो एक खजाने का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचता है। $2.5 उस दौर में इन गोल्ड कॉइन्स वाह, कन्फेडरेशन से चुरा कर कुछ सिपाही भाग जाते हैं, डिफेक्ट कर जाते हैं, जिनमें मेन आदमी बिल कार्सन होता है। अब बिल कार्सन का ताकुब करते करते ये उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर एम्बुश में सारे मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग बिल कार्सन।
اب بل کارسن کو ہی پتا ہوتا ہے کہ خزانہ چھپایا کہاں ہوا ہے، اور اس مرتے ہوئے بل کارسن سے تو اس سے پوچھ لیتا ہے کہ خزانہ چھپایا کہاں ہوا ہے. وہ بتا دیتا ہے کہ سیڈ ہل سیمیٹری میں ایک قبر ہے. تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے اتنے میں ہی نا، تو کہتا ہے مرنے لگتا ہے نا، تو کہتا ہے واٹر. وہ پانی لینے جب جاتا ہے نا، پانی پکڑے مرنا نا، ابھی نہ مرنا، 2 منٹ نہ مرنا، بعد میں مر لینا، مجھے بتا. وہ پانی لینے جاتا ہے، اس دوران رینگتا رینگتا زخمی اور نیم مردہ گڈ کلنٹ ایسٹ وڈ وہ اس تک پہنچ جاتا ہے، تو اپنا کان اس کے منہ کے قریب رکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ مر جاتا ہے. اب وہ جب اگلی واپس آتا ہے نا پانی لے کر، تو کہتا ہے کہ اس نے تمہیں بتا دیا؟ کہتا ہے جی اس نے مجھے بتا دیا. کہتا مجھے بتاؤ. کہتا میں پاگل ہوں. ہونٹ اس کے پھٹے ہوئے، چیکس اس کے چٹاک پڑے ہوئے، صحرا کی صحبتیں برداشت کر کر کے اتنے دن بہت برے حالوں میں وہ وہاں پہنچا ہوتا ہے، اور اس پر اگلی ظلم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ چھوٹ چکے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا نہیں تمہیں. اکٹھے آئے ہیں اکٹھے ہی جائیں گے. یہ پھر تلاش میں نکل جاتے ہیں. یہ جو بیڈ ہے اسے کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں بل کارسن سے ملے تھے اور انہیں راز کا پتہ ہے. یہ اتنا تشدد کرتا ہے ان کے اوپر، اتنا تشدد کرتا ہے، بڑا ہی بھیانک تشدد. تو وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہے. خیر ان کو لے جاتا ہے وہ اسی قبرستان میں، اور ایک جگہ پر جس کو میکسیکن سٹینڈ آف کہتے ہیں، جیسے ڈول ہوتا ہے نا 2 کا، تو میکسیکن سٹینڈ آف ہوتا ہے 3 جب کھڑے، تینوں میں سے جس نے 2 کو مار دیا. یہ جو بیڈ ہے یہ نکالتا ہے یہ ریوالور، لیکن گڈ جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے چونکہ وہ گڈ ہے اور وہ ہیرو ہے اور وہ کلنٹ ایسٹ وڈ ہے، اس کی تو پہچان، اس کا یہ سگنیچر ہے. اور یہ پوری ٹریلوجی ہے. ایک تھی A Fistful of Dollars، یہ پہلی تھی. دوسری تھی For a Few Dollars More، اور تیسری تھی اس ٹریلوجی میں جو لیکن وہ پچھلی 2 کو بہت پیچھے چھوڑ گئی، یہ والی فلم. سر اس جیسی کوئی اور فلم بھی ہے؟ ویسٹرن یونرا میں بے شمار ہیں جو اس کو تقریباً چھوتی ہیں، قریب قریب ہیں. سٹوری بیسڈ جتنی بھی ہوں گی نا، سٹوری پراپر سٹوری بیسڈ، تو ان میں سمجھتا ہوں جو کلوسسٹ ہے دیٹ از ونس اپون اے ٹائم ان دا ویسٹ. تو خیر اس سٹینڈ آف میں یہ شوٹ کر دیتا ہے اسے، لیکن بلانڈی اب اس کو بیڈ کو مار دیتا ہے. بیڈ تو مر جاتا ہے، لیکن وہ جو ٹوکو ہے، اگلی ہے، وہ اپنے پسٹل سے لڑ رہا ہے کیونکہ گولیاں کدھر گئی میری. تو 1 رات پہلے اس کی گولیاں نکال دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک سٹیج پہ یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو از ٹو اسمارٹ. جو گڈ ہے نا وہ ٹو اسمارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح فلم اینڈ ہو جاتی ہے. یہ اس کو آدھا سونا دے دیتا ہے، آگے شرارتیں کرتا ہے اس کے ساتھ، آخری وقت میں بھی اس کو باندھ کے چھوڑ آتا ہے، پھر اینڈ پہ اس کو وہاں سے پھر مارتا ہے گولی اور وہ رسا توڑ دیتا ہے، رسا کاٹ دیتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم دونوں نے یہ مووی سنم سینما میں دیکھی تھی؟ جی سنم سنیما بہت شاندار فلم ہے، اور تھینکس ٹو مرحوم راؤ سکندر اقبال صحیح جی، جن کا وہ سنیما تھا. یہ بعد میں جو ہمارے وزیر دفاع تھے جی راؤ سکندر اقبال، وہ انگریزی فلموں کے خود بڑے شوقین تھے، انہوں نے سنیما بنا دیا. پرابیبلی اس ایریا کا سب سے سمارٹ سنیما اس دور میں، ریکلائننگ سیٹس اور بڑا شاندار ایئر کنڈیشن سنم سنیما. وچ سٹی؟ اوکاڑا. واز اٹ کمرشلی سکسیسفل؟ سنم سنیما اٹ واز اے بلاک بسٹر سنیما بذات خود. اس سے پہلے ہم انگریزی فلم دیکھنے کنٹونمنٹ جایا کرتے تھے. بالکل. وہ بھی فوجی جب مووی لگایا کرتے تھے. ہمارا اسکول چونکہ فوجیوں کا اسکول تھا، اور پھر میرے اور جاوید کے کنیکشنز فوجیوں کے ساتھ بہت عمدہ تھے. فوجیوں کے بیٹے بیٹیاں ہمارے ساتھ ہمارے کلاس فیلوز تھے، کرکٹ ٹیم میں بھی، اسپورٹس کی دیگر چیزوں میں، ڈیبیٹ میں. تو پھر ہم مل کر پلان کیا کرتے تھے کہ جی فلاں فلم آئی ہوئی ہے اور وہ ہم نے دیکھنی ہے. وہ پھر میس میں یا ہمارے اسکول میں وہ فلم برپا ہوتی تھی. بیڈ کی طرف چلتے ہیں. اس وقت سے بیڈ نے کوئی بات نہیں کی. جی بیٹ دے پتہ نہیں گیند وجی ساڑے ਸਰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਗੁੱਡ ਮੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ. یہ ٹریچرس ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ٹکا کے تھا. وہ کیسے؟ کہ اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ دونوں بہرحال یکجا ہیں. تم نے ان دونوں پر اکٹھے تشدد کیا ہے. وہ دونوں تشدد فیلوز تو تھے نا، تم سے مار کھائی انہوں نے. وہ دونوں مل کر تمہارا کلا کما کر سکتے ہیں. تم انہیں لے گئے وہاں پہ، اور پھر جب سٹینڈ آف تھا تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس قدر تیز ہے. مطلب کہ اس قدر آسانی سے اس نے مار دیا، ورنہ چھوٹا موٹا کوئی اس کو بھی لگتا. اس کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی اس نے اس کو پھڑکا دیا. اس لیے میں تمہیں
एक बेवकूफ जालिम कहता हूं। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਫਾੜ ਵੀ ਲਏਗਾ। जी यही होती, फैंटी लगाने वाले को आखिरी वक्त तक ये अंदाजा नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। और तुम उन्हीं कब्रों में से एक कब्र में धड़ाम करके गिरे, और देखो ना जैसे लाशा गिरता है 6.5 फुट का, पूरी फिल्म को तुमने आगे लगाया हुआ था और उसके एक शॉट ने तुम्हें उड़ा दिया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। अच्छा, तुम्हें चपेड़ा नहीं मार रहा था, वो खुद उसने कुछ नहीं मारा था, उसके पास बंदे थे जो घूंसों से, लातों से और गोडों से तुम्हारी तवाज़ो कर रहे थे। ਉਸ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਫਿਲਮ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡਾ ਵਜਾ 6 ਘੰਟੇ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। क्या मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें तीनों काम करोगे आप? क्या कह रहे हैं आप? ਓਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। यार मुझे बात सुनो, उससे पूछ तो लेने दो कुछ सवाल, मैं हो सकता जवाब ना दूं। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। अब मैंने जरूर पूछना था, और चुप रहो तुम। ਸਾਲਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਚਕਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। जी जनाब। ਲੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਹੀ ਯਾਰ। जी जनाब। सर मैं एक पाकिस्तानी फिल्म बना रहा हूँ, उसमें इन तीनों को काम दूंगा, तकरीबन 8-9 गाने होंगे, एक्शन मूवी होगी, प्रॉपर कॉमेडी होगी, एक बढ़िया फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं। ਓਏ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਲਿਆ, ਕੈਸਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। हो सकता है वो अच्छी फिल्म ही बना ले। ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ। अल्लाह ने बड़ी बड़ी चिड़ियों से बाज मरवाए हुए हैं। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਚਿੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰੇ ਕੀ ਐਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। आप लोगों ने वो सुना नहीं कि बंदा कखू भी लख थी वेंदे। ਬੰਦਾ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਥੀ ਵਹਿੰਦਾ। तो इसमें कहा क्या है? कखू लख, कख से ना, कख था बंदा, कख। परेकाह, परेकाह होता है ना, पर मीन्स पत्ता, का मीन्स घास, घास फूस से कख से लख हो गया, ओह, तो कखू लख थी बंदा है। बंदा रिचेस से रैग्स पे भी चला जाता है और रैग्स से रिचेस भी हो जाता है। ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਖੋ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। पागल दा पुत्र आते हैं अल्ताफ हुसैन दा फिल्मा का नहीं दिखा, 87 फिल्मा बनान, 87 ते ओंदे च वड्डियां हिट थैन। ਵੇ ਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, MQM ਵਾਲਾ। ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। साला साहब का ना दिखी अब। साला साहब, साहब जी, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। कैसी कैसी कमाल की फिल्में। और म्यूजिक देखें, वे एक तेरा प्यार नन्नू मिलिया, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। वजाहत अत्रे की बहुत खूबसूरत मधुर कंपोजिशन। ਕਰੀਨਾ ਓਏ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਰੀਨਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦਿਓ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵਜਾਹਤ ਅਤਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਲੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बड़े बड़े तेज। लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, क्या है? ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ, ਟਡਨ ਟਡਨ ਕਿਲਰੇ ਨੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ, ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਵਾਦਾ ਏ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। यार ये हमारे गुड द बैड द अगली का अजर क्या कर रहे हैं? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। पहला सलाम करा, ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ। मुझे पता था कि हर गाने में इन्होंने यही अजर करना। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹਾਨਾ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਰੁਸ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ना बुरा लग रहा है यार ये। ਕੌਣ? ਅਰਲੀ? ਓਏ ਅਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮਰੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। इशरत चौधरी दा। ਇਹ ਸਾਲਾ ਇਸ਼ਰਤ ਥਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਥਾ ਤੁੱਥਾ ਨਾ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਥੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। गाजियाबाद का पहला नाम क्या था? ਕਮਿਆਰਪੁਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਭੱਟੋ ਕਲੋਨੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਤਤਪੁਰਾ।
नहीं तो वैसे वाकई उस इलाके का एक नाम फिक्स क्यों नहीं करते? ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ओए डॉक्टर साहब, ओए डॉक्टर साहब। ਇਹ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨਰਸ ਵੀ ਥੱਥੇ ਨੇ। अच्छा आजकल आप तीनों क्या कर रहे हो? ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੈ ਮਾਰ ਦੇਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਬੈਠਾ ख्वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि दीगर चीज़ों की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट भी अपने स्याह दौर से गुजर रही है। हाय। क्रिकेट की ये बदहाली देखी नहीं जाती। इससे पहले भी बहुत बुरा वक्त आया क्रिकेट पर। कप्तान का मसला, बॉलर्स का मसला, ओपनिंग बैट्समैन, ये बहुत बड़ा अलमिया था, फील्डिंग बहुत बड़ा अलमिया रहा। लेकिन जो आज की सूरत हाल है, जिस हालत से पाकिस्तानी क्रिकेट आज गुजर रही है, ये इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। एक मतला है बहादुर शाह जफर से मंसूब के बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। इसको पैराफ्रेज करें ना कि जैसी अब है तेरी हालत कभी ऐसी तो न थी। इस कदर बुरा हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का कभी नहीं था। ये हमें याद दिलाता है दो सिचुएशंस का, और बड़ी क्लियर एनालॉजी नजर आती है। मैं स्पोर्ट्स तक ही अपने आप को महदूद रखूंगा, बमरे मजबूरी बहुत सारी दीगर चीजों के हालात भी बिल्कुल इसी तरह, और ये एनालॉजी आपको हर फील्ड में नजर आएगी। इकोनॉमी में नजर आएगी, सोसाइटी में नजर आएगी, पॉलिटिक्स में नजर आएगी, गवर्नेंस में नजर आएगी, हर चीज में। लेकिन जो दो स्पोर्ट्स हैं जिन्हें मैं फोकस कर रहा हूं, एक है हॉकी, दूसरी स्क्वाश। जब किसी चीज की तदफीन का वक्त आन पहुंचता है और मैयत अभी मैयत नहीं बनी, अभी उसमें जान होती है, आपको पता है ना, तो लास्ट राइट्स की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मुझे यूं महसूस होता है कि क्रिकेट को जिस नहज पर पहुंचा दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह हॉकी भी वहीं पहुंची थी, स्क्वाश भी वहीं पहुंची, और आज देख लें कोई नाम लेने वाला नहीं है इन दोनों स्पोर्ट्स का। अब देखिए पिछले 12 महीनों में हमने क्रिकेट में किया क्या है कि हम कभी अफगानिस्तान से नहीं हारे थे, अफगानिस्तान से हार गए। हम T20 में कभी आयरलैंड से नहीं हारे थे, वो हार गए हैं। हाय। हम बांग्लादेश से कभी टेस्ट सीरीज नहीं हारे, अब हार गए हैं होम ग्राउंड में, होम ग्राउंड। हम यूएसए से कभी नहीं हारे थे, जो टीम ही कभी नहीं थी। हम यूएसए से हार गए। वो तो टीम ही सर पहली दफा आई थी सामने, अभी तो उसकी रनिंग ही पूरी नहीं हुई थी, अभी तो उसकी चेपियां भी नहीं उतरी थी, ब्रांड न्यू थी, और उससे आप हार गए। ये सब कुछ पिछले 12 माह में हुआ है। चुनांचे इस गिरफ्ता दिल कैफियत के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस वक्त क्रिकेट के क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं। डमी म्यूजियम से हमने बुला रखा है 4 अदद डमीज को, और यकीन कीजिए अगर हम हकीकतन बुलाते लोगों को, वो भी डमीज से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। ਭਾਈ ਸਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, 4 ਡਮੀਜ਼। मैं कोई डमीਜ਼ नहीं हैगा। नहीं, आप डमी तो नहीं है, लेकिन हैं तो साबर आजम ना। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ। ये पाइन हैं कौन? बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, बड़ी मेहनत। मैं पीसीबी च हूं जी। ये पीसीबी में क्या करते हैं यार आप लोग? पीसीबी से तनख्वाहें लेते चले जा रहे हैं और हमारा नाम डबोते जा रहे हैं, क्रिकेट की तदफीन करते चले जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ? यार वैसे एक अजीब सूरत हाल है। अली हसनैन, ये बताइए कि क्या आजकल बड़ी डिवीजन नजर आती हैं? कोई एक बाबर आजम ग्रुप है, एक शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप है, एक शान मसूद ग्रुप है, एक ऑफिशियल ग्रुप है, ये क्या मामला है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये नज़र आते हैं हमें टीम के अंदर। बाबर आजम को कप्तानी से उठाया, वो एक अलग लॉबी है। शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया, वो एक अलग लॉबी है। और शाहीन तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जैसा आपके सामने कि पिछले 1.5-2 सालों में कोई एज सच मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं। देखो, शाहीन शाह अफरीदी भी बददवाया गया है। मैं समझता हूं कि जब आप पोलिटिसाइज हो जाते हैं ना, या जब आप किसी बात पर इतराने लग जाते हैं, किसी ताल्लुक पे, उसका ख्याल शायद ये हो कि भाई मैं चूंकि इस वक्त बड़ी तगड़ी पोजीशन में हूँ, बॉलर में बहुत तगड़ा हूँ, कप्तान में बना दिया गया हूँ, सुसर मेरा बड़ा खड़पैंच है,
और आजकल बड़ा मंजूर नजर है सरकार दरबार के। शाहीन को एक और गलतफहमी भी है, लगता है कि उसने चूंकि 2 मरतबा लाहौर को जितवाया है, जो कि पहले कभी नहीं जीती तो 6-7 सालों में। इस बिना पर भी उस और डोमेस्टिक क्रिकेट और चीज होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है। फिर एक और ट्रेजेडी, मोस्ट ऑफ देम डोंट गो टू गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यस, मोस्टली प्रोडक्ट होते हैं गली मोहल्ले का। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो गली मोहल्ले में जो क्रिकेट आपने सीखी है ना, वो बस ऐसी है। जब आप ग्राउंड में आते हैं तो एक आदमी है जो आपको बताने वाला है कि भाई दिस इज रॉन्ग, ये लंबा मारना, छोटा मारना, वट्टा मारना, फिर खुच मारना। अब खुच क्या है भला? पैर को कहते हैं, पैर के ऊपर जो जगह है ना, जो एंकल से थोड़ी सी ऊपर जो जा रही, उसको खुच कहते हैं। ये मुहावरा नहीं कभी आपने पंजाबी सुना, पिछलियां मारियां खुच्चां थे? हाँ बिल्कुल। यस, आपने सुना होगा। तो खुच पैर को कहते हैं कि खुच मार, फिर डंडियां छोड़, डंडियां थे, डंडियां थे, और डंडियां थे, लोग कहते हैं डंडियां थे। डंडिया मीन्स स्टंप्स के ऊपर आओ। तो एक आदमी है जो इनको बताता है कि भाई अपना जार्गन ठीक करो, अपना नॉमेनक्लेचर ठीक करो, व्हाट इज डंडिया से। और वो होता है फॉरेनर। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही लोगों को क्या। तो वो जब बताता है कि उसूल ये है, इस तरह करके भाग के, मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने जीता हुआ मैच हार गया था, एक दफा स्कोर लेवल कर दिया, पुरानी बात है, स्कोर लेवल कर दिया एंड दे हैड वन। लेवल कर देने से वो जीत गए थे रन रेट पे, और टूर्नामेंट में इन्हें वही चाहिए था। अगला स्कोर लेने के चक्कर में ये मैच हार गए, क्योंकि इन्हें उसूल का पता ही नहीं था, उसूल का ही नहीं पता था। तो स्कूलिंग भी नहीं प्रॉपर हुई, कॉलेज की शक्ल मोस्टली नहीं देखी तुम लोगों ने, और फिर इतराते इतने मुतकब्बिर इतने हो कि यही नहीं, इनके चाहने वाले, जैसे सरकार दरबार पे आपने सुना होगा कि हटना बचना कर रहे होते हैं कि वजीर साहब आ रहे हैं। वो वजीर साहब इतने बददिमाग नहीं होते, उनके मसाहिबीन उनको कर देते हैं, उनके चाहने वाले या वेस्टेड इंटरेस्ट वाले उनको कर देते हैं। मैंने कभी क्रिकेट के बारे में कोई जरा बात टेढ़ी की, किसी की शान में गुस्ताखी की, तो आपने देखा जी हाँ, कि किस हद तक उन्होंने, या तो सर आंखों पे बिठा लेते हैं, इवन जूते भी मार लेते हैं, जी भी कौन। तो जब मेरे कहने के ऐन मुताबिक बाबर आजम और उसकी टीम बर्बादियों की आखिरी हद पे जा पहुंची, तो सबको याद है यार आफ्ताब इकबाल ने 2 साल पहले जो कहा था। अली हसनैन साहब आपको याद है? फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल याद। फिर आपको याद है मेरे लिए कैसी तारीफी फिक्रे जो है ना, लेकिन मुझ पे कोई असर नहीं हुआ उसका। बाबर आजम आज भी मुझे उतना ही प्यारा लगता है एज अ बैट्समैन। तो आज क्रिकेट का जो हशर है वो एक बाबर, अच्छा एक वो चाचा ग्रुप भी है भाई, ये जो हमारा स्पिनर है और वो लॉन्ग हैंडल प्लेयर है इफ्तिखार, उसका भी एक ग्रुप है। ये टीम स्पोर्ट और ग्रुपिंग से भरा पड़ा है। मैं जिस दिन उन क्रिकेटर्स में बैठा हुआ था ना, आज से चंद रोज पहले, एक बड़ा लंबा चौड़ा इकट्ठ था क्रिकेट का, तो यहां पर तो रोज होता है। शारजा क्रिकेट ग्राउंड इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, ठीक है, ओके, इफ नॉट फ्रॉम द हाउस एटलीस्ट फ्रॉम द स्टूडियो। वहां से तो लाइटें नजर आ रही होती ना उनकी खिड़की में से। तो वो बता रहे थे कि इनकी बाकायदा मुंहमारी होती है ड्रेसिंग रूम में, कप्तान की एक और सीनियर प्लेयर से, सीनियर प्लेयर की एक दूसरे सीनियर प्लेयर से। यार इस तरह नहीं होता, इस तरह वंस इन अ वाइल होता है, ओके। तो बाहर निकल के आप कैसे यूनिटी दिखाएंगे? ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕੌਮ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਤ ਆਇਆ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਚ। बस वो बदनसीब एक मेडल क्या ले आया है कि हासदीन अब उस पर भी पिल पड़े और अपने जोरे बाजू पर। जी जी जी, इनके ऊपर कितना लगाया जाता है। तो मुतलका महकमा है, उसने उसको जेवलिन तक नहीं लेकर दिया था और बाद में कहती प्रोपेगेंडा है सारा। और जो ही वो जीता, सर आपका विजन है, सर आपका विजन है। शर्म से डूब मरने का मकाम है वो जो कह रहा है सर आपका विजन। वो जिसको कह रहे हो सर आपका विजन है, उसको तो शीशे में विजन नहीं नजर आता होगा। एक मफलूज सा मखबूतल आवाज सा शख्स है, कभी उसकी गुफ्तगू सुनी है? इस कदर इनआर्टिकुलेट गुफ्तगू, 4 फिक्रे सुन लो, हैरान रह जाओ कि वो क्या बातें कर रहा है। और उसे कहे सर आपका विजन है, वाह वाह वाह, क्या बिस्मार्क है वो, कितने बड़े लेवल का मिटरनिक है वो, बड़े बड़े आइजनहावर नहीं कह दिए, शुक्र है उसको। भाई तुसी ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ नहीं सुनी? ये भी करता है तकरीर, क्यों इस साले ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਕਲਿੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਐਂਡ ਪੈਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤ ਤੋੜ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਢਲਟਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੂ। वो तो बहुत शानदार लेग अंपायर था,
बेहतरीन। सर वैसे वो क्या मैच था, कौन लोग थे, कहाँ थे आप? ये पिछले दिनों ये जो यौम आज़ादी की तकरीबात थी ना, उस सिलसिले का एक टूर्नामेंट था, एक मेला था जो पाकिस्तान ओवरसीज़ काउंसिल ने अरेंज कर रखा था, जिसके प्रेसिडेंट हैं यहाँ के अपने सलीम शाह साहब, सैयद सलीम शाह, बहुत ही ऑनरेबल और लाजवाब आदमी। तो यहाँ की काफ़ी मज़ेदार टीमें हैं, एक मीडिया की टीम है, एक सोशल मीडिया की टीम है और एक शोबिज़ की टीम होनी चाहिए थी, जिसका मुझे एहसास हुआ बड़ी शिद्दत से वहाँ जाके। तो मुझे इन्होंने पाकिस्तान ओवरसीज़ काउंसिल वालों ने अपना मेंटोर बनाया हुआ है। लेकिन उस दिन की जो हाइलाइट्स थी उसमें एक तो ये था कि एक बड़ा खूबसूरत पाकिस्तानी गेट टुगेदर था, बड़ी देर बाद यहाँ देखने को मिला। हालांकि ह्यूमिडिटी इंतहा की थी, लेकिन मज़ा आया वहाँ जाकर। और क्रिकेट ग्राउंड था वो, इतना खूबसूरत ग्राउंड, इतना शानदार ग्राउंड, पूरा प्रोफेशनल, कि जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और आपको रिव्यू लेने का उसमें ऑप्शन है, फैसिलिटी भी थी। वाह तो यानी पूरा क्राउड रिव्यू देख रहा है पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। वाह। और क्राउड भी ऐसा यहाँ का तमीज़ वाला है और क्रिकेट लवर्स हैं कि एक एक गेंद पर दाद भी देते हैं, फील्डिंग पे दाद देते हैं। ਅੱਛਾ ਲੈਗ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ? और नहीं यार, मेरी फील्डिंग थी वहां पर ना, पहली गेंद पर ही उसने चौका मारा, वो बड़ा शानदार प्लेयर था। ਅੱਛਾ शिराज वड़ाइच, वेरी गुड प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल प्लेयर था एक वो, और दूसरा था उस्मान लाहौरी। ये कमाल के प्लेयर्स थे, दोनों ने फाइनल जीतने में बड़ा रोल प्ले किया। ये स्टेडियम है कहाँ पे? ये स्टेडियम इज वेरी क्लोज टू अस, ये अजमान में है। इसको 7 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं और इट इज ओन्ड बाय मोहम्मद हैदर, अ वंडरफुल वेरी यंग पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर, जो धड़ाधड़ तनख्वाहें दिए जा रहा है यंगस्टर्स को, प्लेयर्स को, और एकेडमी चला रहा है अपनी क्रिकेट की। बिजनेस उसका कोई और है, आउट ऑफ शेयर पैशन। वाह। फिर इस स्टेडियम की जो रूह रवां है, अदर देन द ओनर, दैट इज सज्जाद अब्बासी, अ क्रिकेट नोइंग पर्सन, बहुत उसके बारे में इल्म रखता है। हम कुछ प्लान करने लगे हैं कि यूएई बेस्ड जो क्रिकेट टैलेंट है जी हाँ। उसको मॉडिफाई किया जाए, नर्चर किया जाए, फाइन ट्यून किया जाए, और इसमें बड़ा रोल प्ले करे। फिर एक टीम थी, तो सर यही टीम्स थी? नहीं, एक बड़ी आम टीम थी हमारे काउंसलेट की, एंड यू नो हु लेड द टीम? जो काउंसिल जनरल है हमारे, वाओ, वो हुसैन मोहम्मद खान, वेरी यंग ऑफिसर, वेरी कॉम्पिटेंट। तो बल्कि खेले भी वो, सो मच सो एक बड़ी उम्दा शॉट भी खेली उन्होंने, और मैच वो हमसे हार गए थे, लेकिन टीम अच्छी थी उनकी। अच्छा जी, फिर उनमें अली ज़ेब वाज द कमर्शियल काउंसलर, उस टीम में फिर फवाद वाज देयर। दे आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बट दे आर वेरी गुड ऑफिसर्स, एक से एक बढ़कर वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव पीपल। सर आपकी बैटिंग नहीं देखी? नौबत ही नहीं आई, क्योंकि 5-6 ओवर का मैच, और पहले में तो मेरा ख्याल है यूं समझिए कि ओपनिंग बैट्समैन हमारे जो हैं उन्होंने स्कोर अप कर दिया, 76 स्कोर था, तो वो तो कोई मसला ही नहीं। दूसरे में मेरी बैटिंग आती अगर चेज हम करते, पहले बैटिंग हमने की, वो अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर्स थे। साद बहुत अच्छा प्लेयर है, अरशद मार्शल का बेटा। अरशद मार्शल इज वन ऑफ द ओल्ड टाइमर्स, लाहौर में क्रिकेट बड़ी खेली है अरशद मार्शल ने, यहाँ पे अब एकेडमी में ट्रेन करते हैं यंगस्टर्स को। ਭਾਜੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਾ, हाँ जी, हम फाइनल में पहुंच गए थे ना। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? फाइनल में लास्ट बॉल पर फैसला हुआ, हम हार गए, और फहद असद की टीम, जो हमारा आर्टिस्ट नहीं फहद असद, हाँ जी, उसकी टीम जीती, और हम जीता हुआ मैच हार गए। 32-33 स्कोर एक ओवर में पड़ गया हमें, वाह वाह। और हम तो जीत गए थे। मामा टीम उजड़ गई हूँ, कख नहीं रहा टीम दे पल्ले। नहीं, अब अगर आपने अपने आप को ठीक ना किया ना, आप लोगों की कमेंट्री मैंने करनी है। कैसे कमेंट्री करेंगे? मैं सरैकी दे विच करे सां, किस तरह? लग पता वे सी चाह बल्ला बना, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਲਾ ਚਾਹ ਕੀ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੇ ਬੱਲਾ ਪਕੜੀ ਖੜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਆਊਟ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ। याद करेगी सानू दुनिया, मन्निया ये फनकार बड़े ने, ये टीमां बार-बार नहीं बनदियां, इन्हां नूं टाइम दिओ थोड़ा जिहा। ये वाली तो कभी भी ना बने यार। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਅਜ਼ਰਾਬਾਨੋ ਸਲਮਾਨ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਆਊਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਡਾ ਬਗਾ ਸੌ। ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ। So, Dino Zrat will take a break. Stay with us.
वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि वालिदैन ने बेटे और बहू के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उन्होंने बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचा। 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया। सर ये कहाँ का वाक़या है? ये उत्तराखंड, भारत, देहरादून शहर है। देहरादून इज द सिटी जो मिलिट्री एकेडमी की वजह से मशहूर है, देहरादून। सर वैसे हैरत अंगेज़ जो बात है इसमें वो ये है कि दरख्वास्त इस किस्म की दायर कर कौन लेता है? और दिमागी तौर पर हिला हुआ कोई शख्स हो तो कर सकता है। जो करवाने जा रहे हैं वो तो चलो है ही है, लेकिन अगले इतने वेले हैं कि ये कंप्लेन। देखें, दरखास्त की हद तक तो आप नहीं रोक सकते। किसी चीज़ की भी दरखास्त दी जा सकती है, उसे एंटरटेन किया जाए या ना, ये एक अलग बात है। मुकदमा दर्ज नहीं होगा इसके ऊपर क्योंकि ये कोई कानून नहीं है ना। और जो स्टैंड लिया है ना पेरेंट्स ने, बाबा जी ने खास तौर पर, दैट इज फ्लिम्सी, दैट इज फनी, रिडिकुलस। क्या कहते हैं कि हमने इसकी तालीम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, यहाँ पढ़ाया, अमेरिका पढ़ाया, वहाँ से पायलट का कोर्स करवाया, बड़े पैसे लगे, $65,000 हमारे लगे अमेरिका से कोर्स करवाने में। ओके। तो अब आकर ये शादी के स्पेल से ही नहीं निकल पा रहा, 6 साल हो गए, कुछ नहीं कर रहा। यानी वो बेचारा काम वाम कर रहा है, लेकिन खातिर खा जो इनका ख्याल है ना कि कोई बड़ी एयरलाइंस उसे फटाफट ले ले और बड़े लाजवाब पर्क्स देते हुए बहुत बड़ा पायलट लग जाए कहीं, ऐसा होता नहीं है। उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश और ख्वाब पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अब मैंने इस पे बड़ा गौर किया कि इसमें उसकी क्या इंटरेस्ट है कि बच्चा पैदा हो। अगर वो पहले इतने ज़्यादा नहीं कमा रहा तो बच्चा पैदा होने से तो और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा इकोनॉमी पे। और ये एक अलग बात है कि 5 साल 6 साल गुजरने के बावजूद उसने क्यों, कपल ने नहीं सोचा। कोई ना कोई रीजंस होंगी, हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो। जी जी, कोई नहीं, मेडिकल इशू होता तो पेरेंट्स इस तरह ना कहते। हो सकता है छुपा रहे हो, पीछे बर्डन दे रहे हो, बहुत सारे वहाँ पर सोशल प्रेशर्स होते हैं। कुछ भी हो सकता है। मे बी इस बात को एक्सपोज करने के लिए या ट्रूथ का सुराग लगाने के लिए वो इस हद तक उतर आए हो कि भी अब तो बताएगा कि क्या रीज़न है। पहले अगर हमें उसने चक्कर दे रखा है तो वैसे ये बात मानने की नहीं है कि 6 साल हो जाएं विदाउट अ रीज़न। आपने स्ट्रगल रहा की होती है, ये क्या बात हुई? तो इसलिए ये केस फ्लिम्जी है, बेतुका है, लेकिन इशू कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस पे वो बेचारा अपने आप को एक्सपोज ना करना चाहता हो। और फिर ये कि हमारे पैसे वापस करे अगर उसने ये नहीं करना। मैंने गौर जो किया है ना, वो मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि वो सोच ये रहे कि अगर ये कल को पायलट लग जाता है तो ये तो घर से बाहर रहा करेगा, तो 24/7 इसकी ड्यूटी होगी। तो हमारे पास कोई प्ले थिंग होनी चाहिए घर पे, कोई खिलौना होना चाहिए। ये चाहे यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, किसी और शहर चला जाए कपल, लेकिन बच्चा तो एक हो ना, हमारे पास 1-2 बच्चे हों ताकि हम बुजुर्गों का दिल लगा रहे। इन बोथ केसेस एक तरह की सेल्फिशनेस का वो मुजाहरा कर रहे हैं। हमने डमी म्यूजियम से बुला रखा है दोनों कपल्स को, एक ये जो नौबयाता हैं सो कॉल्ड जो 6 साल हो गए, और एक वो जो डिसिडेंट्स हैं जिन्हें शिकायत है। तो पहले बात करते हैं हम बाबा जी के साथ। जी क्या कहते हैं आप भाईजान? बाबा जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਧਰ ਆਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। क्या मसला क्या है आपका? अगर वो नहीं बच्चा पैदा कर रहे तो कोई ना कोई वजह तो होगी। ਉਹ ਦਸਨ ਮਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸਨ। आप क्या उपाय कर सकते हैं? आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई आप डॉक्टर हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं कोई बहुत बड़े। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣ ਦੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ये बड़ी रिडिकुलस बात है कि मुझे किस्म का पता चलना चाहिए कि मैंने दुआ किस किस्म की करनी है। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੂਲੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਘਰ ਐਡਾ ਉਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਏਡੀਆਂ ਥੱਕੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲੀ ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਉੱਤਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। बहरहाल 6 साल हो गए, ये बेल अब मुंडे चढ़नी चाहिए। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ। ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। तो थोड़े वाली क्या मिसाल है? ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥੌੜਾ ਦਸਤੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। मैं आपकी बेगम से पूछना चाहता हूँ, ये कुछ हिले हुए हैं, थोड़े से पागल हैं क्या?
क्या मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? आपने जो इतना सोच के जवाब दिया, इसका मतलब है कि देयर इज सम ट्रूथ इन दिस। मैं हैरान हो गई हूँ, आप मेरे पति के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਪਰਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਜੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਚਿੜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? वो क्या है, वो क्या है? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। आप बताएं यार, चिड़े वाली क्या मिसाल है? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜਾ ਚੁੰਝਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਿੜਾ ਚੁੰਝਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ 12 ਮਹੀਨੇ, 1 ਸਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਦਰਬਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੂਟ ਤਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। नहीं, वैसे वाकई आपके पेरेंट्स अगर इतना कह रहे हैं तो आपके फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर सकते कोई? क्या मसला क्या है यार, बताते क्यों नहीं हो तुम? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਏ, ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ठीक है, नहीं भाईजान, नो 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 नो, दाल में कुछ ना कुछ काला है जरूर। है ना, कोई मेडिकल रीजन हो सकता है तो इट्स ओके, आप उसको करें, बात करें उस पर। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਭਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। देखें, हैं तो आपके वालिदैन ना, आप उनको अच्छे से काउंसिल करें, उनसे बात करें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਨੌ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। अच्छा, ये नॉर्थ कोरिया भी बहुत अलार्मिंग पोजीशन है। जी, वहाँ पे भी जो है बर्थ रेट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। जापान, फ्रांस, बेलारूस, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, यहाँ पे नेगेटिव बर्थ रेट। यूक्रेन, बेलारूस। दैट्स राइट। और अब तो चाइना में भी ये मसला पैदा हो गया। 1979 में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। 2016 में 2 चाइल्ड पे आ गए, 2021 में 3 चाइल्ड पे आ गए, लेकिन अब भी जो है पॉपुलेशन कम हो रही है उनकी। वहां पर एक कपल ऐसा है कि जिसने पहले 3 बच्चे पैदा किए, उसको उन्होंने करोड़ों रुपया जुर्माना फाइन किया, कर दिया। हाँ। फिर उन्होंने 7 बच्चे बना लिए, वो मल्टीप्लाई करते रहे, वो फाइन देते रहे, उन्होंने कहा जी हमने पैदा करने हैं। लेकिन अब तो उनको उल्टा रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। यस, अब तो उनको रिवॉर्ड मिलना अब चाहिए। मैं समझता हूँ अब तो रिमिट होना चाहिए जो उन्होंने पे कर रखा है। युगांडा में एक खातून है, उसने 44 बच्चे पैदा किए हैं। ओह माय गॉड। और अदालत ने उस पर पाबंदी लगा दी कि अब तुमने अगर बच्चा पैदा किया तो ये देखोगे। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਸੁਣ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ 6-7 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇ ਅੱਬਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੂਰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਰਫ਼ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? देखिए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਛੈਣੀ ਥੋੜਾ ਚਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ 6 ਲੈਂਟਰ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਡ ਤੇ ਜਾਹਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਚੂੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਵੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ ਲੈਣ। मसला क्या है बताओ? ਮਸਲਾ ਅੰਮੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ। बहरहाल क्या करें डॉक्टर साहब, आपने दुआ करनी है हम दोनों खुश रहें, बस बच्चे बुच्चे होंगे रहेंगे, जो खुश होंगे तो बच्चे भी हो जाएंगे। जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तब होंगे बच्चे। असल गल नहीं करनी, नहीं दसना इन्हां नूं। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ? ਏਡੀ ਨੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੁੱਤਰ ਕੱਟਾ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਹੋਰ ਕੱਟਾ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਬਾ, ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ। ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਤਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। जी, ਖਾਲੀ ਜੀ ਪੌਣਾ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अच्छा, बदतमीज कितने हैं, उनको बात तो करने दे पूरी। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ?
ਤੇ ਆਪਕੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹਾਂ हुई थी? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਸੜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ। तो तीनों हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।